اب ہم آتے ہیں پھر مائک نمبر 1 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 1 سے. میرا نام راکیش رنجن ہے، میں کٹیہار سے ہوں. اسلام میرے ذہن میں کافی دنوں سے ہے اور میں پیس ٹی وی کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا اور آپ سے کافی امپریس ہوں. تو ایک سوال میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے پر شاکاہاری کو کیا مانساہاری ہونا ضروری ہے؟ یہ عام لوگوں کی ذہن میں ہے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پہ کیا شاکاہاری کو مانساہاری، ویجیٹیرین کو نان ویجیٹیرین ہونا فرض ہے؟ نہیں بھائی صاحب، اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری بننے کے بعد بھی. اسلام میں فرض نہیں ہے. تو میں تہہ دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ، اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، میں اکیلا ہوں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا کوئی ہے؟ زبردستی نہیں. کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے؟ رشوت کس چیز کیا دے گا؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں. ایک بار ایسا ہوا تھا پونا کے اندر، ماشاءاللہ 19 لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. تو پولیس جا کے پوچھی تو ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دیا آپ کو؟ تو اسی لیے میں سب لوگ کے سامنے، پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں. تو حق کی بات کے لیے ڈر کیا؟ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں. اور گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. فرائض بہت کم ہے اسلام میں، فرائض اور حرام بہت کم ہے. لوگ سمجھتے بہت چیز فرض ہے. اور ایک کتاب ہے کیا 70 میجر سن میں، بڑے گناہ 70. تو یہ 70 چیز میں 70 جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر، کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے. تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوشت کھانا فرض ہے. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوشت کھانا ہی چاہیے. ہاں اجازت ہے، اجازت وید میں بھی ہے، اجازت قرآن میں بھی ہے. اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ، نہیں ٹیسٹی لگتا مت کھاؤ. آپ کو اگر پسند نہیں آتا مت کھاؤ. تو آپ اپنے خوش آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بھر اگر شاکاہاری بھی رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو. گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اور میں آرگنائز سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی غیر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نہیں بھی قبول کر رہے، سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اور ہدایت دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے. دھنیہ واد. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو شعر اور شاعری سنائی الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان ہے، مسلم بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے. یہ سارے انسان ہیں اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا علیہ السلام، اور ان کے ہم سنتان ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا. آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں، چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو، وید پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو. ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا،
जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा? घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते, नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में हिंदू पंडित आके बोलते हैं सर्वधर्म सब धर्म एक है। वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है। वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसानियत है उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसानियत है उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे,
हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब. हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी. हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी. तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से. इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में. तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है. और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए. अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया. उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने. तो हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन. तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं. तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं. और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं. जो यक्षान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं. जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं. मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना. फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए. आपकी दिशा ही गलत है. तो पहले मंजिल को तो तलाश करो. मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो. तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए. और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे. जब वो शख्स आएगा, He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे. ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का. जो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है. कम से कम कॉमन पे तो अमल करो. जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे. तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो. कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए. आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो. कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है. कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है. ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए. इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.